Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My very dear students of first semester, Ma'am Kokab Saeed is here with the new topic which is written on the board, custom as a source of law. Custom is the third important source of law. Before coming towards the topic, I'll give you a brief introduction regarding the topic. We discussed that there are two main sources of law in our country. They are modern sources, and number second is Islamic sources. Modern sources are further divided into formal sources and material sources. Material sources are further divided into historical sources and legal sources, and we all know, and I discussed this thing with you people, that legal sources are the real source of law, which gives us variety of laws in form of legislation, in form of precedents, customs to certain extent, and due to all these laws, our country runs in a very proper way, and we get new rules of law according to the changing needs of our society and state. I'll not touch the Islamic sources here. So coming directly towards our topic, custom. First we discussed legislation. Legislation is law making by the parliament. Number second source we discussed precedents. Precedents is the judge-made law, case law, the law given by the courts of law, which is binding on all the lower courts in the country in like type of situations and circumstances. Now custom, today the topic for our discussion is custom. I have written few informations regarding the custom on the board. First of all, I'll discuss with you the meaning and the definition of the term custom. Custom, the word custom means long established activity. Number second, usual habit. Number third, regular use of something. सो कस्टम लिटरली मीन्स लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जो बहुत अरसे तक जिस पे अमल होता रहा, और यूजुअल हैबिट जो हमारी आदत बन चुकी है, हम खुद उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, यूजुअली हम अपनी रूटीन में, हैबिट में उसको यूज़ करते आए हैं, और रेगुलर यूज़ ऑफ समथिंग, और हैबिचुअली और रेगुलरली हम उसको यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द कस्टम. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कस्टम in law or in jurisprudence, according to Sir Solmond, custom is the body of those rules, is the collection of those rules which have commended themselves to the national conscience as a principle of justice and public utility. यानी कि ये वो बॉडी ऑफ रूल्स हैं, कस्टम वो बॉडी ऑफ रूल्स हैं जिसने कि अपने आप को लोगों के कॉन्शियस में जो दाखिल हो गया है, किस हैसियत से, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस और पब्लिक यूटिलिटी की हैसियत से लोगों के जहनों में दाखिल हो गया है, लोग उसको हैबिचुअली फॉलो करते हैं, एज अ राइट फॉलो करते हैं. देन अकॉर्डिंग टू ऑस्टन, कस्टम इज अ रूल ऑफ कंडक्ट विच इज ऑब्जर्व्ड spontaneously and not due to any law set by any political superior. Now it is very good definition. According to Austin, custom कैसा body of rules है कि जो खुद ब खुद हम observe करते हैं, which is observed spontaneously, और किसी अथॉरिटी की वजह से नहीं, किसी पॉलिटिकल सुपीरियर की वजह से नहीं फॉलो करते. थर्ड डेफिनेशन which I have chosen for you people is the definition given by Holland. Custom is generally observed as a course of conduct. And Carter, C-A-R-T-E-R, according to Carter, custom is the uniformity of the conduct of all persons. ठीक है, कस्टम क्या है? सभी लोगों के का एक ही तरह से एक्ट करना कस्टम कहलाता है.
These were the few definitions by different jurists. Now I have designed a very easy definition for you people. According to this definition, custom is a habitual course of conduct. Custom is a habitual course of conduct which is observed uniformly and voluntarily by the people of the state. ठीक है, तो कस्टम क्या है? हैबिचुअल कोर्स ऑफ कंडक्ट है, एक लोगों का ऐसी आदत, ऐसा कंडक्ट जिसको वो हैबिचुअली फॉलो करते हैं और यूनिफॉर्मली और अपनी वॉलंटरली और अपनी मर्जी से और एक ही तरह से फॉलो कर रहे हैं, उसको हम कस्टम कहते हैं. सो द डेफिनेशंस आर वेरी इजी. सॉलमन ने बड़े सिंपली कहा कि कस्टम इज अ बॉडी ऑफ रूल्स विच is in the national conscious as a principle of justice and public utility. ऑस्टिन कहता है it is the body of that rules which is observed spontaneously and not due to any political sovereign. And according to Holland, custom is generally observed course of conduct. Carter, custom is a uniformity of the conduct of all persons under like type of circumstances. And another general definition जो कहती है वो ये कहती है कि custom is the habitual course of conduct which is observed uniformly and voluntarily by the people. These were the few definitions regarding the custom as a source of law. Now I'll give you some points regarding the importance of the custom as a source of law. As we all know from the definitions, हमें ये पता चलता है कि custom जो है कोई ऐसा source नहीं है जो किसी बाकायदा किसी body से बनकर आए, किसी जैसे कि legislation है जो parliament से बन के आता है, जैसे कि precedents हैं जो judge made law है, बड़े authentic उनके साथ जो हैं sources हैं, बड़े authentic उनके bases हैं. तो ये custom का क्या base है? तो कहता है कि custom फिर भी still very important source of law. It has not the outcome of the legislation. ये legislation से नहीं आया, nor it is formulated through precedents, ना ही precedent से बना है. Then how it is developed? तो कहता है कि it is developed by the popular opinion and by long usage. सिर्फ दो important चीज़ें हैं इसको बरकरार रखने के लिए. Number 1, long usage. Number 2, if you can watch it, popular opinion के ऊपर ये बेस करता है. ठीक है ना? वैसे अपनी लैंग्वेज में हम सबको पता है कि कस्टम वो रस्म व रवाज होते हैं जो कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जो कि हम फॉलो करते हैं, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनको देखते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम उनको जो है अपने साथ लेके चलते हैं. फैमिलीज़ के होते हैं, इलाकों के होते हैं, लोकल होते हैं कभी, और सम टाइम ये कस्टम्स ऐसे भी होते हैं जो पूरे मुल्क के अंदर प्रिवेलेंट होते हैं. लेकिन हर कस्टम लॉ नहीं होता है, हर कस्टम लॉ नहीं होता है. सिर्फ वही कस्टम लॉ होता है जो कि जिसमें ये पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि ये लेजिस्लेशन के ज़रिए नहीं बनता, प्रेसिडेंट्स के ज़रिए नहीं बनता. तो कैसे बनता है? लॉन्ग यूजेज हो. नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द कस्टम इज कैसे, कौन सा कस्टम कस्टमरी लॉ होगा जो कि लॉन्ग यूजेज हो, बहुत अरसे से ऑब्जर्व किया जा रहा हो. एंड नंबर 2 पॉपुलर ओपिनियन, उसके साथ पॉपुलर ओपिनियन भी होना चाहिए, मतलब लोगों के अप्रिसिएशन भी होना चाहिए. सो हर मुल्क के अंदर बेशुमार कस्टम्स होते हैं, लेकिन हर कस्टम को हम लॉ नहीं कहते. कुछ कस्टम, बहुत से कस्टम्स होते हैं जो ब्लैक कस्टम्स के नाम से जाने जाते हैं, या जो ऐसे कस्टम्स होते हैं विच आर अनएक्सेप्टेबल बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. So they do not regarded or followed by the people as a source of law. ठीक है? So क्या हुआ? इम्पोर्टेंस सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया इसका मीनिंग, फिर मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताई जिनमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया सॉल्वेंट की, ऑस्टन की, हॉलैंड की और कार्टर की डेफिनेशन, और फिर मैंने आपके साथ एक जनरल डेफिनेशन डिस्कस की. फिर मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंस क्या इम्पोर्टेंस है इसकी सोर्स एज अ सोर्स ऑफ लॉ, एज इट is not the outcome of legislation, it is not the outcome of the precedents. Then how it is developed? कहाँ से फिर ये बनता
बनता है, तो कहता है कि इट इज़ डेवलप्ड थ्रू लॉन्ग यूजेज, एंड नंबर सेकंड थ्रू पॉपुलर ओपिनियन से ये बनता है, ठीक है। अब कमिंग टुवर्ड्स अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कस्टम, मैं आपके साथ थोड़ा सा कस्टम की एक ब्रीफ सी हिस्ट्री को डिस्कस करूंगी कि कैसे ये कस्टम स्टार्ट हुआ और कैसे इसको एज अ सोर्स ऑफ लॉ जो है वो अपनाया गया। वी ऑल नो, बार अभी इस स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट से नहीं, लेजिस्लेशन से नहीं, ये सिर्फ लोगों के ओपिनियन से और लॉन्ग यूजेज से कस्टम जो है एज अ सोर्स ऑफ लॉ बनता है। और वही कस्टम जो है सोर्स ऑफ लॉ होते हैं जो जिनको अप्रिसिएशन हासिल होती है, या जिनके बारे में एक जनरल डेफिनेशन में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कोर्स ऑफ कंडक्ट विच इज़ ऑब्जर्व्ड यूनिफॉर्मली एंड वॉलंटरली, यूनिफॉर्मली सारे ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड वॉलंटरली और अपनी मर्जी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वही कस्टम जो है लीगल सोर्स ऑफ लॉ होता है। अब थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री, जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि मैं आपके साथ इसकी डिस्कस करूंगी, तो हिस्ट्री क्या है कि कहता है कि इन ओल्डन टाइम्स देयर वर नो लेजिस्लेशन। अब तो बाकायदा पार्लियामेंट है, अब तो बाकायदा कानून साज इदारे हैं हु कैन लेजिस्लेट for us or who can give case law or judge made law for developing the laws, but कहता है कि in olden times there were no legislations, no precedents, then how the disputes were settled? The disputes were settled by the elders. अपने अपने इलाके के जो एल्डर्स होते थे वो खुद ही उन डिस्प्यूट्स को सेटल कर देते थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज द विद द ग्रोथ ऑफ द सिस्टम्स, विद द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम्स, and the people trained themselves as judges or legal experts, तो फिर ये ज़रूरत पड़ी कि प्रॉपर लेजिस्लेशन होने लगी। जब लीगल एक्सपर्ट्स आ गए तो फिर लेजिस्लेशन होने लगी और बाकायदा फिर लॉ कोर्ट्स बनी, लॉ कोर्ट्स के ज़रिए जज मेड लॉ हासिल होने लगा। तो फिर कस्टम जो है वो ज़रा पीछे चला गया, लेकिन स्टिल वो कस्टम जो लॉन्ग स्टैंडिंग है, वो कस्टम्स जो लोगों को की अप्रिसिएशन जिन्होंने हासिल की और जो वॉलंटरली लोग आज दिन तक फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे कस्टमरी लॉ का और कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ का हिस्सा हैं और उनको उसी तरह से रिस्पेक्ट हासिल है और उसी तरीके से वो कोर्ट्स, इवन कोर्ट्स ऑफ लॉ के ज़रिए एनफोर्स किए जाते हैं। तो हिस्ट्री में थोड़ा सा ये कि previously when there was no legislation, no law courts, no parliament, then at that time the disputes were settled by the elders in the light of customs की रोशनी में वो सारे डिस्प्यूट सेटल्ड किया करते थे उस टाइम के अंदर। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम और इन कस्टम्स को बिल्कुल फोर्स ऑफ लॉ की हैसियत हासिल थी, लोग उनको उतनी ही रिस्पेक्ट करते थे और उसी तरह से उनको ऑब्जर्व करते थे जिस तरह के अब लेजिस्लेशन या प्रेसिडेंट को फॉलो किया जाता है, ठीक है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, ग्रोथ ऑफ द सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम, लॉ कोर्ट्स बनी, लेजिस्लेशन हुई, लीगल एक्सपर्ट्स आए, तो फिर कस्टम भी मेयरली एक सोर्स ऑफ लॉ रह गया। जबकि अर्लियर वो क्या था? इट वॉज लॉ इट सेल्फ। Custom was law itself. Previously, in past, in primitive times, custom was law itself. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हमने याद रखनी है कि हिस्ट्री इसकी क्या है। Custom was law itself. ठीक है, खुद वो लॉ था। Now सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, इसका डिफरेंस पहचानिए। पहले टाइम उस प्रिमिटिव टाइम्स में क्योंकि और तो कोई सोर्स ही नहीं था, कस्टम ही जो था वो लॉ था और उसी के मुताबिक फैसले किए जाते थे बाय द एल्डर्स ऑफ द लोकेलिटीज, बाय द पीपल नॉमिनेटेड बाय दैट पर्टिकुलर एरिया, वही सेटल करते थे और कस्टम जो था वो खुद ही लॉ की हैसियत उसको हासिल थी। बट अब क्या है, चूँकि लेजिस्लेशन है, बाकायदा कानून साज इदारे हैं, तो
जो कस्टम है वो नाउ इज नॉट लॉ इटसेल्फ बट इट इज अ सोर्स ऑफ लॉ. इट इज अ थर्ड सोर्स ऑफ लॉ. फर्स्ट सोर्स लेजिस्लेशन, सेकेंड सोर्स प्रेसिडेंट्स, थर्ड सोर्स custom. ठीक है, तो इट वॉज अ लिटिल बिट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ कस्टम. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द काइंड्स ऑफ कस्टम, देयर आर two main kinds of custom: legal custom and conventional custom. Legal custom, a legal custom is legal custom, I should write it here, I think so. Kinds of custom, there are two kinds of custom. Kinds, number one, legal की further two types हैं, जनरल एंड नंबर 2 इज लोकल. ठीक है, और सेकेंड काइंड ऑफ कस्टम इज कन्वेंशनल. Conventional. First kind is legal custom. Legal custom has two further kind: general custom and local custom. And second kind is conventional custom. Very easy, very simple. Legal custom is the custom which has the force of law. It is independent of any agreement between the parties. Everybody is bound by it. Its legal authority is absolute. It is operative परसी मतलब ऑटोमेटिकली ऑपरेटिव है, कहना नहीं पड़ता कि ये कस्टम है, बल्कि वो चूंकि लीगल बन चुका है, उसको बाकायदा जो है लॉ की हैसियत हासिल हो चुकी है, तो इसलिए इसको हम लीगल कस्टम कहते हैं. ठीक है, तो लीगल कस्टम कौन सा हो गया? वो कस्टम जो कि पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट की वजह से नहीं उसकी फोर्स होती, बल्कि वो किस वजह से होता है? क्योंकि वो अथॉरिटी जो है उसकी एब्सोल्यूट है, लीगल हैसियत उसको हासिल है. ऐसा कस्टम है जो कि पार्टीज़ को हर सूरत में जो कि फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, सेकंड उसकी दो टाइप्स हैं: जनरल लीगल कस्टम एंड लोकल लीगल. जनरल लीगल कस्टम इज अ कस्टम विच इज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द सोसाइटी. जब पूरी सोसाइटी में वो कस्टम होगा तो वो जनरल लीगल कस्टम कहलाता है. एंड लोकल लीगल कस्टम व्हेन इट इज प्रिवेलेंट इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, इट इज़ कॉल्ड लोकल कस्टम. ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में, किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लेस पे, किसी लोकल एरिया में अगर वो प्रिवेलेंट होगा तो उसको हम लोकल कस्टम कहेंगे. ठीक है, कन्वेंशनल कस्टम आ जाता है. सेकंड इज कन्वेंशनल कस्टम. कन्वेंशन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कन्वेंशन मीन्स एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज. सो द कस्टम विच इज प्रिवेलेंट बिटवीन द पार्टीज ड्यू टू एन एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपनी उस डीलिंग में उस कस्टम के मुताबिक वो डीलिंग की है, तो फिर उसको हम कन्वेंशनल कस्टम कहते हैं. उसकी हैसियत लीगल नहीं है, मतलब ऑल द टाइम वो एप्लीकेबल नहीं है. लीगल कस्टम वो होता है जो ऑल द टाइम एप्लीकेबल होता है, उसको ये मनवाना नहीं पड़ता कि ये कस्टम है, या कोर्ट्स को पता है वो उसकी हैसियत लीगल कस्टम की है, और वो जो है वो लीगली बाइंडिंग होता है सबके ऊपर. उसकी दो तरह टाइप्स होती हैं, जनरल और लोकल. जनरल लीगल कस्टम होता है विच इज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द स्टेट सोसाइटी, और लोकल लीगल कस्टम विच इज प्रिवेलेंट विद इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी. सेकेंड इज कन्वेंशनल कस्टम विच इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, जो पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट के ऊपर बेस करता है. ठीक है, उसको हम कन्वेंशनल कस्टम कहते हैं. ठीक है, दैट्स इट विद द काइंड्स. अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह ताला विद एग्जांपल्स में आपको ये सारा समझाऊंगी. वीडियो हम बहुत प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, अभी मकसद आप तक वो उसकी बेसिक्स को पहुंचाना है. अभी हम आ जाते हैं इसेंशियल्स ऑफ द कस्टम. essentials ऑफ द कस्टम. नाउ अब कौन सी, अब इस चीज़ से आपको सही समझ आएगी कि कस्टम क्या, कौन सा कस्टम होता है, और कौन सा कस्टम सोर्स ऑफ लॉ है. ठीक है, वन बाय वन मैं इन पॉइंट्स को आप पर क्लियर करती जाऊंगी शॉर्टली, ब्रीफली, क्योंकि वीडियो प्रोलॉन्ग हो जाती है फिर. ठीक है, सबसे पहले है रीजनेबल. सबसे पहला इसेंशियल है रीजनेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनेबल, तो क्या कहता है कि कस्टम मस्ट बी रीजनेबल. एन अनरीजनेबल कस्टम इज नॉट एनफोर्स्ड एंड एक्सेप्टेड बाय लॉ कोर्ट्स.
कस्टम को हर सूरत में रीजनेबल होना चाहिए। द कस्टम मस्ट नॉट बी द वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड पब्लिक पॉलिसी मोरालिटी। ऐसा नहीं हो कि वो जो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस मोरालिटी के प्रिंसिपल्स को उल्टा वो तोड़ता हो, ब्रेक करता हो। तो फर्स्ट एसेंशियल जो कि एज अ सोर्स ऑफ लॉ, जिस कस्टम को हम कहते हैं कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है ना, हम क्लेम कर रहे हैं कि कस्टम जो है एज अ सोर्स ऑफ लॉ है, तो वो हर कस्टम नहीं, जो मैंने पहले आपको स्टेटमेंट दी, तो वो कौन सा कस्टम है? नंबर वन, विच इज रीजनेबल वन, विच शुड बी रीजनेबल इन, हम सबको पता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रीजनेबल, जो काबिल कबूल होगा, विच इज नॉट अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी एंड जस्टिस। इफ एनी कस्टम इज अनजस्ट or seriously it is opposed to the reason or the right, it will not be accepted by the law courts, it will not be accepted as a source of law at all। इसकी एग्जांपल मैं सब आपको दो, बड़ी अच्छी सी एग्जांपल है, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती ऑल्दो टाइम नहीं होता हमारे पास, बट ये कि फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में बहुत से कस्टम्स हैं, ब्लैक कस्टम्स जिनको कहते हैं, कारोकारी का कस्टम, मैरिज विद कुरान का कस्टम, या एक आम कस्टम जो हमारे अंदर इंडल्ज कर चुका है, जहेज देने की का कस्टम, जो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया। तो ये कस्टम्स क्या हैं? ये रीजनेबल नहीं है, बिकॉज दे इम्पोज बर्डन्स ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल। इसलिए इन कस्टम्स को एज अ सोर्स ऑफ लॉ नहीं माना जाता, कोई लॉ कोर्ट इनको नहीं मानती है। आपका कोई भी बंदा जो है अदालत में ये नहीं जाके कह सकता कि कारोकारी का हमारा कस्टम है जी, हमारे इलाके का रिवाज है, अगर हमारी कोई लड़की इस तरह करेगी तो हम उसके साथ ये वाला जुल्म करेंगे। हमारे ख़ानदान में अगर कोई बड़ा लड़का नहीं होगा तो हम मैरिज विद कुरान करेंगे, हमें इजाज़त दी जाए। क्यों ये लोग आके से जो है रेजिस्ट कर रहे हैं? या सिंपली छोटी सी चीज़ है, जहेज को ज़रूरी करार दिया जाए? नो नो वे, वो उल्टा बर्डन्स हैं। क्योंकि मैंने पहले सिरे आपको जनरल सब डेफिनेशंस में और जनरल डेफिनेशन में कहा कि लोग कैसे फॉलो करेंगे उसको, वॉलंटरली फॉलो करेंगे, अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से फॉलो करेंगे। सो द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ द कस्टम इज इट शुड बी रीजनेबल वन। ठीक है, फर्दर इसकी बहुत सी एग्जांपल्स इंशाल्लाह अपने लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड इज कंफर्मिटी विद द लॉ। कंफर्मिटी विद लॉ, स्टैट्यूट लॉ, ठीक है ना, कंफर्मिटी, ठीक है, इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द स्टैट्यूट लॉ। किसी तो स्टैट्यूट लॉ मतलब लेजिस्लेशन, किसी तौर पे भी इसको किसी लेजिस्लेशन के या स्टैट्यूट लॉ के, पार्लियामेंट मेड लॉ के, रिटन लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये लॉ जो है, ये कस्टम्स जो है वो थर्ड सोर्स ऑफ लॉ है। हमने पहले ही डिस्कस कर दिया कि लेजिस्लेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, और उसको तो हम सबसे पहले जो हमने इंपॉर्टेंस देनी है वो लेजिस्लेशन ही को देनी है। सो लेजिस्लेशन इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। सो कस्टम भी, कोई भी ऐसा कस्टम सोर्स ऑफ लॉ की हैसियत नहीं रखता, या उसको उधर ही नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, विच विल बी अगेंस्ट द स्टैट्यूट लॉ। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी इलाके में कोई कस्टम है और फिर कोई स्टैट्यूट कोई कानून साजी हो जाती है उस कस्टम के अगेंस्ट, तो उस कस्टम को उस इलाके के लोग या मुल्क के लोग जो है उसको इन्फोर्स नहीं करा सकेंगे, क्योंकि स्टैट्यूट बन चुका है और कस्टम कभी भी अगेंस्ट द स्टैट्यूट लॉ नहीं हो सकता। वी विल फर्दर डिस्कस इट इन आवर लाइव सेशन। ठीक है, third important essential of the custom is immemorial. Immemorial time period, time, ठीक है, इसको it should be applicable from immemorial time period. It is very important essential of the custom. The customs which have the force of law must be immemorial. It must have existed for so long a time that in the language of the law, the memory of the man could not search it. It's back. It's history.
उसको उसकी इंसान का जहन उसकी हिस्ट्री को सर्च आउट ना कर सके. सो इट शुड बी फ्रॉम इमेमोरियल टाइम पीरियड, इमेमोरियल एंटिक्विटी. ठीक है ना, बहुत पुराना होना चाहिए इसको. प्रेजेंट, रिसेंट एग्जाम्पल्स कैन नॉट बी प्रेजेंटेड और कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सोर्स ऑफ लॉ. तो इट शुड बी फ्रॉम इमेमोरियल टाइम पीरियड. ठीक है. थर्ड, फोर्थ आ जाता है आपका ऑब्जर्वेंस एज ऑफ राइट. एज अ राइट, ऑब्जर्वेंस एज ऑफ राइट. ठीक है. नाउ द लीगल कस्टम मस्ट हैव बीन ऑब्जर्व्ड एज ऑफ राइट. इट मस्ट बी फॉलोड बाय द पीपल एज ऑब्लिगेटरी एंड नॉट ऑप्शनल, एज अ राइट. उनको पता हो कि वी हैव टू फॉलो इट. भाई ये सिर्फ एक कस्टम ही नहीं है कि हमारा दिल चाहा तो हम इसको फॉलो करेंगे और हमारा दिल नहीं चाहा तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे. तो ऑब्जर्व्ड एज अ राइट, they must know that they have to follow it. Its following is obligatory, not optional. उनकी मर्जी पे नहीं है. ठीक है. So it's enough I think for this point. Observance as of right, हर सूरत में उनको पता हो कि इसको observance जो है वो necessary है, as optional नहीं है. फिफ्थ है continuity. Continuity, the fifth essential is continuity. ठीक है. Continuity means it should be observed without any break. It should be observed without any break. It must have continuity. It should not be abandoned, stopped by the people for it should not be broken or abandoned by the people. ठीक है. सो कॉन्टीन्यूटी इज वन ऑफ द इसेंशियल्स ऑफ द, हम इसीलिए कहते हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिचुअल कोर्स ऑफ कंडक्ट इसकी डेफिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है कि इट इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिचुअल कोर्स ऑफ कंडक्ट यूनिफॉर्म विच इज़ ऑब्जर्व्ड यूनिफॉर्मली एंड वॉलंटरली बाय द पीपल इज अ कस्टम विच इज़ नोन एज सोर्स ऑफ लॉ. ठीक है. तो कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए. एक आज ऑब्जर्व हुआ, फिर इस टाइम पीरियड के दौरान बड़ी अप्रिसिएशन है जी, ये वाली चीज़ फॉलो हो रही है, लेकिन कुछ अरसे के बाद इस चीज़ को नहीं फॉलो किया गया, ब्रेक आ गई, तो वो कॉन्टीन्यूटी ना रही, तो वो कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ नहीं रहेगा. ठीक है. और लास्ट इज पीसेबल इंजॉयमेंट. पीसेबल enjoyment. ठीक है. Last point is peaceable enjoyment. Peaceable enjoyment means that the people follow the custom without any disturbance or protest. When people have demonstrated or agitated against the custom is not based on general consent. It means the custom is not based on general consent of the people. ठीक है. So the requirement of the valid custom is that it must not be criticized or resented by the people of the society, and no protest or demonstration has been seen against it ड्यूरिंग इट्स ऑब्जर्वेंस. ऐसा ना हो कि उसके खिलाफ कोई एजिटेशन हुई हो, उसके खिलाफ लोगों ने शोर किया हो, ऐसा ना हो. सो पीसेबल इंजॉयमेंट इज वेरी मस्ट. सो दीज आर द 6 पॉइंट्स एज the essential points which differentiate between a custom and the custom which is regarded as a source of law. ठीक है. So मैं एक दफ़ा अलाइन कर देती हूँ सारे पॉइंट्स को जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए. सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया कस्टम, उसके मीनिंग को, फिर मैंने आपके साथ कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया जिनमें सॉलमन, ऑस्टन, हॉलैंड और कार्टर की डेफिनेशन को मैंने आपके साथ डिस्कस किया. फिर एक जनरल डेफिनेशन आपको मैंने दी है. ठीक है. उसके बाद मैंने आपको बताया कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ. तो हमने कहा कि रूल्स कम आउट ऑफ दीज लेजिस्लेशन से नहीं, प्रेसिडेंट से नहीं, बल्कि ये पॉपुलर ओपिनियन और लॉन्ग यूजेज से ये रूल्स बनते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग यूजेज से बनते हैं, और इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है क्योंकि ये पब्लिक ओपिनियन के ऊपर बेस करते हैं. ठीक है. फिर मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री आपके साथ डिस्कस की कि प्राइमरीली कस्टम जो था वाज नॉट मेयरली ओनली द सोर्स ऑफ लॉ बट इट वाज लॉ इटसेल्फ.
बल्कि वो खुद एक लॉ कहलाता था, वो खुद ही उसी से लॉज बनते थे, क्योंकि कोई लॉ कोर्ट्स नहीं थी, कोई पार्लियामेंट नहीं था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, लेजिस्लेशन होने लगी, प्रेसिडेंट्स बनने लगे, तो कस्टम जो था वो एक लॉ इटसेल्फ ना रहा, बल्कि इस एक सोर्स ऑफ लॉ की तरह इसको रिकग्नाइज किया गया, रिस्पेक्ट किया गया, और अभी भी स्टिल इसको रिस्पेक्ट किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ लॉ। फिर हमने डिस्कस की कुछ काइंड्स ऑफ कस्टम, जो दो ही हैं, लीगल कस्टम एंड कन्वेंशनल। लीगल कस्टम वो होता है कि द कस्टम विच हैज गेट द फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, जिसने जो फोर्स ऑफ लॉ की हैसियत, जिसमें फोर्स ऑफ लॉ है, जो लीगली बाइंडिंग होता है, विच इज लीगली बाइंडिंग थ्रू द कोर्ट्स ऑफ लॉ, ठीक है, फोर्स ऑफ लॉ है और कोर्ट्स ऑफ लॉ के जरिए इसको ऑब्जर्व करवाया जाता है। इसकी दो काइंड्स है, जनरल लीगल कस्टम और लोकल। जब वो पूरे सोसाइटी में होगा तो वो जनरल लीगल कस्टम होगा, और जब वो पर्टिकुलरली किसी इलाके के अंदर होगा तो वो लोकल लीगल कस्टम कहलाता है। और कन्वेंशनल कस्टम वो कस्टम होता है जो दो पार्टीज के एग्रीमेंट के ऊपर बेस करता है, कि कोई भी हम कोई बिजनेस करने के लिए करने जा रहा है, या कोई दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, शादी हो रही है, तो उसमें वो पर्टिकुलर कोई रस्म और रिवाज फॉलो करना चाहते हैं, तो वो कन्वेंशनल कस्टम के अंदर अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से वो उसको फॉलो करते हैं, तो वो कन्वेंशनल कस्टम में आ जाएगा। उनकी कोई लीगली नहीं, बल्कि उन पार्टीज के दरमियान फिर वो बाइंडिंग होगा। लेकिन लीगल वो है जो हर सूरत में, वो ऑप्शनल नहीं है, हर सूरत में फॉलो करना है उसको, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने कुछ आपके सामने लिखे हुए, अभी भी हमने इसके एसेंशियल रिक्विजिट्स को डिस्कस किया। एसेंशियल्स क्या है? सबसे पहले इट शुड बी रीजनेबल, रीजनेबल होना चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए लोगों के लिए, लोग इसको फ्री माइंड फ्री विल से फॉलो करें। इसको कंफर्मिटी विद द स्टैट्यूट लॉ होना चाहिए, अगर लॉ के, क्योंकि लेजिस्लेशन बहरहाल सुपीरियर फॉर्म ऑफ लॉ मेकिंग है, अगर उसके अगेंस्ट ये होगा तो इसको ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा। थर्ड है इमेमोरियल टाइम पीरियड, इमेमोरियल एंटिक्विटी, इट शुड बी ऑब्जर्व फ्रॉम इमेमोरियल टाइम पीरियड। कोई रिसेंट कस्टम या प्रेजेंट कस्टम्स या प्रेजेंट जो एग्जांपल्स हैं, दे आर नॉट द कस्टम एज विच इज रिकग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। तो इमेमोरियल टाइम पीरियड इतना पुराना होना चाहिए कि जिसकी बेस के बारे में, जिसके स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में कोई कुछ ओपिनियन ना दे सके, ठीक है। फोर्थ इज ऑब्जर्व्ड एज अ राइट, फिर लोग उसको एज अ राइट ऑब्जर्व करें, ऑप्शनल ना हो, उनको पता हो कि ये कस्टम अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो कोर्ट्स के जरिए इसको जो है वो अप्लाई किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, सो वी हैव टू फॉलो इट, उनके लिए ऑब्लिगेटरी हो, ऑप्शनल ना हो। फिफ्थ इज कंटिन्यूटी, लगातार, मुतवातिर, उसमें रुकावट ना हो, रुके ना वो, अगर उसमें रुकावट आई, वो रुक गया, तो वो कंटिन्यूटी उसके अंदर ना रही, तो फिर वो कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। और लास्ट नॉट लीस्ट पीसेबल एन्जॉयमेंट, और लोग इसको बड़े पीसफुल तरीके से एंजॉय कर रहे हो, वॉलंटरली एंजॉय कर रहे हो, विदाउट एनी एजिटेशन। ये नहीं कि एक तबका तो खुशी से एंजॉय कर रहा है, जैसे लोगों ने स्टेटस सिंबल बना लिया है जहेज़ को, और वो बड़े खुशी से ऑब्जर्व करते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि बड़े लविश किस्म के खाने होने चाहिए, कस्टम है ना जी, रिवाज है, देना पड़ता है बेटियों की शादी में, बेटों की शादी में वलीमा बड़ा ज़बरदस्त होता है, ज़ेवरात बड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक तबका है जो एजुटेशन करता है इसके अगेंस्ट, एक तबका है जो इसके खिलाफ उठ खड़ा होता है, या कहना चाहता है कुछ लेकिन अपनी शर्म की वजह से कह नहीं सकता, लेकिन सबको इसका पता है कि भाई वो एक गरीब तबका है, मीडियोकर तबका है, जो ये नहीं चाहते कि ऐसा, वो चाहते हैं कि सिंपलिसिटी हो, ताकि वो भी अपनी बेटियां और अपने बेटों की शादियां पुरअमन और पुरसकून तरीके से कर सकें। तो वो कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, मतलब ये कि उसको कोर्ट के जरिए कभी भी नहीं मनवाया जा सकता, क्योंकि वो पीसफुल एंजॉयमेंट नहीं है। एक बड़ा तबका उसके खिलाफ जो है एजुटेशन या स्ट्राइक्स करना चाहता है और उस को ऑब्जर्व नहीं करना चाहता। तो पीसेबल एंजॉयमेंट मींस एक कस्टम को, ऐसा कस्टम होना चाहिए जो हर जगह, हर लेवल, हर सतह पर बड़े आराम और बड़े सुकून से, बड़ी खुशी से फॉलो किया जा रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ी सी एग्जांपल आपके लिए दूंगी और फिर उसके बाद अपने लेक्चर को ख़त्म करूंगी कि होल ऑफ द इंग्लिश लॉ इज बेस्ड ऑन द कस्टमरी लॉ। पूरा इंग्लिश सिस्टम जो है कस्टमरी लॉ के ऊपर बेस करता है। लोग बड़ी खुशी से, बड़ी रिस्पेक्ट से, बड़े कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं, और कोई इसके ऊपर जो है क्वेश्चन नहीं है,
ठीक है। बहरहाल अभी हम इंशाल्लाह ताला अपने लाइव क्लास में आपकी जो क्वेरीज होंगी, जो क्वेश्चंस होंगे मैं लूँगी, हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है कि साइड बाय साइड विद द लेजिस्लेशन एक प्रॉपर पार्लियामेंट हमारे पास है जो कि कानून साजी करता है, साइड बाय साइड के हमारे पास लॉ कोर्ट्स हैं, हमारे पास लीगल एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे लिए लॉ बनाते हैं, हमारे पास एक ऐसा सोर्स ऑफ लॉ भी है जो कि कस्टम बेस्ड है, जो सिर्फ प्योरली लोगों के कॉन्शियस पे, लोगों के सोच पे, लोगों की अप्रिसिएशन पे, जस्टिस पे, मोरालिटी पे बेस करता है। और साइड बाय साइड इतने स्ट्रॉन्ग सोर्सेज के साथ एक बड़ा बड़ा तगड़े तरीके से, बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ लॉ, लेकिन कुछ एसेंशियल्स के साथ, कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ विच हैव रिटन ऑन द बोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। एंड इंशाल्लाह इन आवर लाइव क्लास ऑन वेडनेसडे हम फ्रॉम 10 to 11:30 AM हम इसको और डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप जो एग्जाम्पल्स चाहेंगे, जो आप डिटेल चाहेंगे, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, आपके वाइवास बहुत अच्छे थे, बहुत ज़बरदस्त थे, मुझे अच्छे लगे। 95%, मोर देन 95% स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से उन्होंने मुझे आंसर्स किए। और कुछ जो इक्का दुक्का बच्चे रह गए हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। इनफैक्ट बिजी रूटीन की वजह से मैं नहीं ले सकी, बट इंशाल्लाह आई मैनेज देयर वाइवास एज वेल। और अभी के लिए खुदाफिज। लेकिन आप लोग काइंडली इसको सुनिए। आप जो लेक्चर्स मैं अपलोड करती हूँ बार बार सुना करो, उसमें से ही मैं क्वेश्चंस उठाती हूँ जो आपके पेपर्स में, जो आपके वाइवास के लिए और इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको काम आएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। खुदाफिज।